Hello my dear students, welcome to Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. Myself Dr. Sanjay Singh, Biology teacher, Subrat Singh Children Academy, Argopur, Kalan, Jaunpur. I told you detail in previous lectures that is known as respiratory quiescents or RQ. In respiration chapters हमने बात आपको डिटेल में बात किया था कि various type of respiratory substrates are present inside our cell and they play a very important role for the production of energy. उसमें हमने तीन का नाम लिया था मेजर्स: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स play a very important role for the production of energy as well as RQ value is differ with each others. But today now we are going to discuss the new chapters that is known as photosynthesis. First of all, what is the photosynthesis and what is the definition of photosynthesis? Before definitions आपको ये मैं बताऊं कि photosynthesis is the very important physiological process of plants. ये बहुत ही important physiological process होता है by which synthesize the food molecules. वो फूड को सिंथेसाइज करता है एंड दिस फूड आर यूज्ड बाय प्लांट एज वेल एज दिस फूड इज आल्सो यूज्ड बाय द ऑल हेटेरोट्रॉप्स. तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स इज द वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस इज व्हाट? फोटोसिंथेसिस इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस बाय विच organic molecules or organic foods are synthesized. So first of all, what is the definition of the photosynthesis? The photosynthesis is what? Intracellular, anabolic process, intracellular anabolic process by which synthesis of organic food that is known as glucose. इसी को हम क्या बोल सकते हैं? ग्लूकोज. with the synthesis of food with the help of carbon dioxide and waters due to presence of sunlight and chlorophyll. That is known as definition of photosynthesis. क्या है? तो photosynthesis takes place inside the cell, that is known as intracellular. Second, this is the anabolic process. Why it is called an anabolic process? Because two small chemical molecules they are joined with each other. अभी हम बात रिएक्शन से बताएंगे. To form a complex molecule. तो this type of process is known as anabolic process by which organic food are synthesized with the help of carbon dioxide and water due to presence of sunlight and chlorophyll. Here is the 6CO2 plus 12 H2O. Presence of sunlight and chlorophyll they converted into C6H12O6 6O2 plus 6H2O. ठीक है, ये जो होगा यही आपका क्या है? ग्लूकोज. दैट इज नोन है फूड. यही आपका फूड हो गया. तो हम ये अभी जो डेफिनेशन में हमने कहा कि दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हियर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स बोथ आर ज्वाइंट्स. दोनों ज्वाइंट होंगे इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय विच synthesize the organic food molecule due to presence of sunlight and chlorophyll. अब ये chlorophyll क्या होता है? In the plants
greenish parts are present, and the greenish part is known as leaf, and inside the leaves photosynthetic pigments are present, that is known as chlorophyll, by which synthesize the organic molecule. तो आप ये कह सकते हो कि लीव्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्या रोल प्ले करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, क्योंकि लीव्स contain a special type of pigment that is known as chlorophyll. They trap the sunlight, के waves को trap करता है, wavelength of the sunlights are trapped by easily chlorophyll. After that, this molecules, smaller molecules converted into the complex molecule that is known as glucose or food. अब ये बात आती है कि what is the importance of photosynthesis? Importance of photosynthesis. Photosynthesis. Basically, two importance of photosynthesis. Number one, supply food to earth, and second, releases O2 by green plants. और ये हम जानते हैं कि ये फूड एंड ऑक्सीजन, दिस इज द टू इम्पॉर्टेंट्स. आप ये देख सकते हो, हियर इज द ऑक्सीजन, हियर इज द फूड, एंड द टू इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है. नंबर वन, फूड जो होता है प्रोवाइडेड, फूड क्या गिव्स एनर्जी व्हेन, उसको जब हम यूटिलाइज करते हैं. तो आज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर प्रेजेंट इन द नेचर्स, उनको क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ फूड इज वेरी वेरी नेसेसरी, बिकॉज द फूड प्रोवाइडेड एनर्जी इनसाइड द लिविंग बॉडी के अंदर वो और वो फूड कौन बनाता है? प्लांट बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? पहला, सप्लाई फूड टू द अर्थ, एंड दिस फूड आर यूज टू ऑल द हेटरोट्रॉप्स एज वेल एज ऑटोट्रॉप्स, वो भी अपने को खाता है. सेकेंड थिंग, रिलीजेज ऑक्सीजन बाय ए ग्रीन प्लांट. तो ये ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है, आप ये देख सकते हो. और ऑक्सीजन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल. देयरफॉर रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता है तो हमारे फूड मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता. इसीलिए कहते हैं ऑक्सीजन जो गैस होती है, वेरी सिग्निफिकेंट गैस ऑफ द लिविंग सिस्टम्स. अगर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी अगर बॉडी के अंदर से नहीं है, सेल के अंदर, अल्टीमेटली डेथ ऑफ द पर्सन हो जाता है, बिकॉज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज टोटली जो होती है स्टॉप इमीडिएटली हो जाती है और अल्टीमेटली डेथ ऑफ द पर्सन हो जाता है. दिस इज द टू मेन इंपॉर्टेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट, व्हाट डू वी नो? What do we know about photosynthesis? हम क्या जानते हैं? By simple experiments, we know that carbon dioxides, sunlight, chlorophyll or the essential component of photosynthesis. Carbon dioxide, sunlight and chlorophyll. By simple experiment we can easily know that three important चीज़ों को मैंने आपको मेंशन किया. Carbon dioxide, sunlight and chlorophyll play a very important role in photosynthesis process. Number one, पहला एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग बात करेंगे. experiments
to demonstrate CO2 is necessary for photosynthesis। एक कैसे एक्सपेरिमेंट, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया है, इस पर भी हम लोग बात करें। ये मोल हॉफ एक्सपेरिमेंट था, मोल्स हॉफ एक्सपेरिमेंट। मोल हॉफ experiments, here is the plots, here is the potassium hydroxide solution QH, here is the bottles, here is the cork, here is the de-starched plants। फिर इसी को क्या किया, इसका हाफ पोर्शन आप देखो ये बॉटल्स के अंदर कवर कर दिया, और हाफ पोर्शन जो है वह सनलाइट के एक्सपोजर में रखा, एक्सपोज टू सनलाइट फॉर 1 to 2 hours पर इन्होंने रखा। इसके बाद इस लीव्स को बाहर निकाला, तो ये जब लीव्स को बाहर निकाला, देन टेस्टेड विथ आयोडीन, टेस्टेड फॉर स्टार्च थ्रू आयोडीन सोल्यूशन। या आयोडीन सोल्यूशन से जब टेस्ट किया इस लीफ को, तो इस लीफ में अभी आप देखो ये जो नीचे वाला जो पोर्शन था ये आपका, और ये पोर्शंस में दोनों में वेरिएशंस हो गया। हियर इज द ब्लू कलर्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, and here is the black color means absence of starch, मतलब यहाँ स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, फूड नहीं बना। वाई? अभी ध्यान देने की बात है यहाँ पर है कि इनसाइड द बॉटल्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स आर प्रेजेंट, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट? CO2 एब्जॉर्बर। ये CO2 एब्जॉर्बर है। तो जो भी यहाँ से CO2 यहाँ से निकला, एंड दिस CO2 आर, ये CO2 एब्जॉर्ब बाय हियर, एब्जॉर्ब हो गया। अब इसके पहले हमने क्या कहा था कि CO2 प्लस H2O बोथ आर ज्वाइंट विथ ईच अदर टू फॉर्म ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब यही ग्लूकोज क्या होती है? स्टार्च के रूप में कन्वर्ट होती है। बट इन हियर द CO2 आर एब्जॉर्ब बाय द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से एब्जॉर्ब हो रहा है। तो देयरफॉर नो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द बॉटल्स, उस बॉटल एरिया में आपको नहीं प्रेजेंट हो। इट मीन्स लाइट तो गया बट CO2 के एब्सेंस में स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। टेस्टेज फॉर स्टार्च थ्रू आयोडीन सोल्यूशन से जब हमने टेस्ट किया तो हाफ पोर्शन जो लाइट के एक्सपोज में था, ये हाफ पोर्शंस ये रिएक्ट विद द आयोडीन सोल्यूशन टू फॉर्म ए ब्लू कलर। इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द लिप्स। क्लियर? एंड द सेकेंड यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या होगा? CO2 एब्सेंट होने के कारण से होती है, आयोडीन नॉट रिएक्ट विद द स्टार्च, यहाँ स्टार्च आर एब्सेंट, देयरफॉर सेम कलर होगा, दैट इज नोन एज ब्लैक कलर। द ब्लैक कलर इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ स्टार्च। तो आप क्या हुआ कि बिना CO2 के स्टार्च बन पा रहा है? नहीं बन रहा। तो एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट किया कि नहीं? मैंने पहला CO2
sunlight and chlorophyll is necessary component of the ecosystem. This is the first experiment. This is the Molhoff experiment by which ये बताया गया. Second experiment to demonstrate light and chlorophyll. Light and chlorophyll is the necessary component of photosynthesis. Necessary component of photosynthesis. This is the second experiment by Moles and Hoff जो किया. उन्होंने क्या कैसे किया? इन्होंने एक प्लांट्स लिया. हियर इज द सिंपल, हियर इज द प्लांट में इन्होंने क्या किया, एक जो लीफ थी दे आर कवर्ड विथ ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, लाइट एंड क्लोरोफिल. एंड हियर leaf not covered with black paper. देखो एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, प्लांट लिया, उन्होंने दो लीफ ऐसा समझो ले लिया. वन लीफ दे आर कवर्ड विद द ब्लैक पेपर्स, या हाफ पोर्शन उसका ब्लैक पेपर से कवर कर दिया जाए या फुल कर दिया जाए. अनदर लीफ इज नॉट कवर्ड विद द ब्लैक पेपर्स. फिर उसके बाद क्या किया, उसको एक्सपोज किया टू सनलाइट. एक्सपोज टू सनलाइट फॉर 1 to 2 hours. 1 to 2 hours के लिए उसने एक्सपोज कर दिया. आफ्टर दैट उसके बाद क्या किया, इसको मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ. टेस्टेड फॉर स्टार्च थ्रू आयोडीन सोल्यूशन. अब जब इसको एक्सपोज किया तो इसमें दो पार्ट थे. ये जो लीफ कवर्ड लीफ जो ब्लैक पेपर कवर्ड लीव्स does not show positive test to starch से नहीं दिया. इट मीन्स ये क्या हुआ, ब्लैक कलर ही रह गया, ब्लैक कलर. एंड द अनदर लीफ जो थी जो नहीं थी, हाँ, लीफ जो डज नॉट कवर्ड विथ ब्लैक पेपर जो ब्लैक पेपर से कवर्ड नहीं थी. सो पॉजिटिव टेस्ट टू स्टार्च से वो पॉजिटिव टेस्ट दिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई. मतलब यहाँ पर आप देखो, लीफ नॉट कवर्ड विद द ब्लैक पेपर एंड लीफ कवर्ड विद द ब्लैक पेपर. अगर किसी भी लीफ को हम ब्लैक पेपर से कवर करते हैं तो दो चीज़ें उसके लिए नहीं मिल सकती. वन इज द लाइट एंड अदर इज द क्लोरोफिल तो उसी के अंदर होता है. बट क्लोरोफिल बिकम एक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इफ द सनलाइट इज नॉट फॉल ऑन द लीव्स, जैसे आप रात को देखो, रात को कभी भी प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता, बिकॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द लाइट क्लोरोफिल बिकम inactive. When the light fall on the leaf, therefore the chlorophyll become excited as well as active for
में आ जाता है एंड दे स्टार्ट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, स्टार्ट लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट इन ईयर आप देखो कि लीफ कवर्ड विद द ब्लैक पेपर से कवर्ड किया है तो लाइट पास नहीं कर पाई। जब लाइट पास नहीं कर पाएगी तो क्लोरोफिल एक्टिव नहीं हो पाएंगे, और क्लोरोफिल नहीं एक्टिव हो पाएंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगी, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ने कहा कि नॉट सो पॉजिटिव टेस्ट टू स्टार्च, नहीं हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, सो पॉजिटिव टेस्ट टू स्टार्च। इट मीन्स लाइट, chlorophyll and carbon dioxide play a very significant role for the photosynthesis process by moles of experiment. Clear? तो what do we know, हमने समझ आया कि हमने क्या जाना कि light, chlorophyll and carbon dioxide play a very significant role for this synthesis of food molecule by the process of photosynthesis. Next, हाँ, this is the only experiment about the photosynthesis means, अभी इसमें जो हम बात करेंगे कि वेरियस साइंटिस्ट इन वेरियस टाइम्स सो द कंक्लूजन अबाउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकॉर्डिंग टू जोसेफ प्रिस्टले। इनके बीच का ईयर है 1733 टू 1805। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेल जार लिया। हियर इज द बेल जार्स, बेल जार्स उन्होंने लिया एंड इनसाइड द बेल जार्स कैंडल्स, burning of candles here present, and here is the mice, here is the mice, rat को लिया, here is the mice and candle. After some times ये burning हो रही थी, burning candles, ये burning candle, after some time inside the jar mice are died, as well as candles का जो था burning are totally stopped, ये बंद हो गया and mice died, mice खत्म हो गया और बर्निंग ऑफ कैंडल स्टॉप, बंद हो गया। फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट के इन्होंने क्या किया, टेक वन बेल जार्स, हियर इज द माइस, हियर इज द mint plants, here is the plants, here is the plants, and here is the candles. Candles are burned in here. Here is the candle, burning candle, burning candle. After some time no any effect of the mice are survive. Here mice survives, here is the mint plants and candle is also burning. burning candles, here is the plants, और ये क्या हो रहा है, survive. This experiment conclude that this experiment conclude that plants absorb gases released from mice
and by burning candles। देखो अभी क्या हुआ है, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। अकॉर्डिंग टू जोसेफ प्रिस्टले, इन्होंने क्या किया था कि एक बेल जार्स लिया। द बेल जार्स जो होता है उसमें कहीं से एयर बाहर निकल नहीं पाती थी। जब वो कैंडल्स जलाया तो यहाँ कैंडल जलाने से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड्स निकलते जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा नहीं पाया। तो क्या हुआ, इफ़ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बेल जार, अगर वो बेल जार्स के अंदर आ रहा है तो दे आर वेरी नॉक्सियस इफेक्ट और वेरी डेंजरस इफेक्ट टू द लिविंग थिंग्स। इसके ऊपर वो इफेक्ट डाला। कुछ समय के बाद माइस की डेथ हुई ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बेल जार। क्लियर। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि माइस ही ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू रिस्पिरेशन, ये भी रिलीज कर रहा है। तो देयरफॉर इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बेल जार्स में बढ़ा। फिर आफ्टर सम टाइम क्या होगा, उसकी डेथ हो गई। फिर उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को थोड़ा चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया, एक चीज़ और ऐड कर दिया, दैट इज नोन एज प्लांट। बेल जार्स लिया, माइस, कैंडल्स एंड प्लांट्स, ऑल थ्री प्लेस्ड इनसाइड द बेल जार्स, वेट फॉर सम टाइम्स। आफ्टर दैट जब देखा देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ द माइस, माइस की डेथ नहीं हुई। वाई? बिकॉज द प्लांट इज ए टाइप ऑफ गैस एब्जॉर्बर। तो इससे जो CO2 रिलीज हुई, इससे जो CO2 रिलीज हुई और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वह दे आर इजिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। द प्लांट प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर क्या है, फॉर एब्जॉर्बिंग डेंजरस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वेरी इजिली। कैंडल भी जलता गया और जो भी CO2 ये एब्जॉर्ब करते गए और इस बुझा भी नहीं। बट यहाँ पर क्या हुआ, इफ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बेल जार, इसकी डेथ भी हो गई और जो बर्निंग कैंडल था वो स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि जो बर्निंग होती है, प्रोसेसिंग होती है ऑफ कैंडल इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इफ द ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, इफ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बेल जार, अल्टीमेटली क्या करेगा, वो उस बुझ गया हुआ लैम्प, एक तरह से कैंडल स्टॉप हो गया, बर्निंग उसकी स्टॉप हो गई ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बेल जार। दिस इज द फर्स्ट अर्ली एक्सपेरिमेंट प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्रेस्ले। एंड second experiment of early experiment of the photosynthesis proposed by John Ingenhousz। इन्होंने क्या लिया था, they takes one plant that is known as hydrilla। this is the aquatic plants। इन्होंने aquatic plant को लिया। इन्होंने दो कंडीशन hydrilla को देखा, when the plants exposed to sunlight during day में जब उन्होंने एक्सपोज किया और स्मॉल बबल्स appear near the plants in water। स्मॉल बबल्स दिखाई दिए when the plant exposed to sunlight during day। second condition, when plants not exposed to sunlight नहीं हुआ तो नो बबल्स appear near the plants in water। ये बड़ा ही इंटरेस्टेड है कि स्मॉल बबल्स अपीयर यहाँ दिखाई दे रहा है। तो एक्वेटिक प्लांट्स पानी में पाया जाता है। तो हमने क्या बोला था, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 प्लस H2O
कंबाइंड विथ ईच अदर, कंबाइंड होगा। 2 for C6H12O6 एज वेल एज रिलीजेज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो क्या होगा जब ये फूड बनाता है ड्यूरिंग डे व्हेन द सनलाइट एक्सपोज ऑन द हाइड्रोला प्लांट्स के ऊपर जब एक्सपोज होता है तो फूड के साथ साथ क्या बनेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, रिलीज करेगा इनसाइड द वाटर, और वही ऑक्सीजन प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल, ऑक्सीजन प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल for all the aquatic animals, and the small bubble is what? Small bubbles is a type of क्या है, gas, and this gas is known as oxygen gas. So here is the small bubbles. The small bubbles represent the oxygen molecules को represent करता है, but absence of sunlight during nights, no bubbles appear near the plants in the waters. It means no photosynthesis takes place ड्यूरिंग नाइट। तो इससे ये भी क्लियर होता है कि एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर इवॉल्व, निकलता है, एंड दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द वाटर बबल्स। क्लियर? तो आज हम लोगों ने यहाँ तक बात किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट कुछ एक्सपेरिमेंट होंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।